जी Assalamualaikum, Sabir Saab, Maher Saab. Now it's the time you may start your corporate briefing session. Maher, can you hear me? आवाज बंद हुई हुई है। अब आ रही है आपकी आवाज, प्लीज कंटिन्यू करें, स्टार्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज Matt, CFO of Merit Packaging Company. We have this small presentation. After that, जो है जो सवालात हैं प्लीज वो आप कर सकते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम, को फुल स्क्रीन कर लीजिए प्लीज। स्क्रीन आ रही है? आप ये स्मॉल स्लाइड बंद कर देना, सिर्फ एक ही स्लाइड रहने दें, डबल। हाँ ये सही है, अब सही है। थैंक यू सर। This is a little background of Lexan Group. जो कि 1954 में we have the Lexan Group was established, and it has grew over the years, and it has more than 1.05 billion of assets, and it has a domestic presence in 50 cities, plus it has an international presence in USA and UAE. और जो Lexan Group है, it is employing more than 17,000 persons in all around the world. That's a direct employment. This is the Lexan Group, or इसके अंदर you can see that the Lexan Group is very diversified group, has investment in various industries. About Merit Packaging Limited, we were established in 1980, and we have the experience in packaging industry for about 4 decades. Our customer portfolio is the local and multinational corporations, and we have state-of-the-art European machines that providing unmatched quality to the customers. These are some of the local and international brands that we are serving right now. It includes Abbott, Colgate, EPM, GSK, Nestle, and international brand that is Cadisha Gold. We have these certifications which are required to be competitive, and also it is required by our many customers to give them the best packaging solutions. This is our vision: to emerge as a preeminent force in the packaging industry, harmonizing our clients' packaging aspirations with our unparalleled expertise, driving innovation, sustainability, and value creation. This is our mission. The mission of Merit Packaging Limited is to collaborate closely with our clients, infuse each packaging solution with ingenuity, precision, and attention, cultivate a culture of continuous learning, uphold the highest standards, championing diversity and inclusion, and embrace the sustainability. These are the values on which our company is standing, and it includes the integrity, innovation, diversity, teamwork, sustainability, and partnership. People at Merit Packaging are one of the important assets that we recognize, that without people, the company cannot run. Therefore, we value our employees. So we have employee recognition, community engagements. We have diversified workforce.
Merit Packaging Limited has been working on the CSR activities also. It includes the ration distribution to needy employees, the Earth Day, and we also drive for blood donation also. We are the responsible suppliers. We are the responsible suppliers of packaging material. We purchase all the boards that are FSC certified, and we use water-based ink that reduced FOC footprint. The wastage, the production wastage is sent to sister concern for recycling, and also we source all our raw materials from the responsible suppliers. The offset division has contains high-end printing machines, and we have the capacity of more than 900 metric tons. The printing machines are state-of-the-art technology, and we have efficient pre-press machines to support high-end and high-speed creasing and cutting machines and folding and print machines. The Merit Packaging Limited has been supported by our sponsors throughout its journey. And because of that, the company is surviving and thriving right now. This is the financial summary of Merit Packaging Limited for the year 2024 and 25. Our revenue has dropped from 6.6 to 5.2 billion, and the gross profit has turned into loss of 28 billion. And we have a net loss of 600 million as against 186 million in financial year 2024. During the year, we have sold the railway division, and in August 2016, we have received the first tranche of the payment of rupees 800 million. This is the graphical representation of our revenue. This is the graphical representation of EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation, and amortization. This is the loss per share since 2020. The future is that the geopolitical and global conflicts can also increase, will increase the international prices and the local prices, which is obviously a threat that will impact our revenue and also the cost. The discount rate, we believe that it will remain same throughout the year, and it will be stable. The PKR parity will also remain stable, but it also depends on the IMF and its continued support to Pakistan. The enhanced economic activity yet to have an impact on the purchasing power parity of the masses, because the packaging industry is directly linked to the purchasing power of the people, and the inflation is currently low, and we are expecting that it will remain under up to the one digit, that is up to 5 to 6%. We are working closely with the suppliers and customers to improve our packaging and secure margins and increase volumes. Thank you so much. If you have any question, please raise your hand and we will be glad to answer you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर आप कुछ बता सकें बेसिकली कि मेरिट पैकेजिंग का बेसिकली काम किस तरह से चलता है और क्या प्रोसेस है इसके अंदर। ऑफसेट का आपने एक जिक्र किया, एक फ्लेक्सिबल का होगा, तो कितने प्रोसेस होते हैं और कंपनी काफ़ी सालों से लॉसेस में है, अब आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है फिर इसको। असल में if I would answer हमारे पास एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग हैज बीन सोल्ड आउट, तो उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता। इन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफसेट, हमारे पास जो बिजनेस है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास प्रिंटिंग है, देन वी हैव कटिंग होती है उस बोर्ड की टू द साइज, एंड देन वी मेक इट द बॉक्सेस एंड सेल इट टू द कस्टमर्स। इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे पास जो जी 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 सर सर प्लीज कंटिन्यू। देखें, पैकेजिंग इंडस्ट्री में हमें जो लॉसेस हो रहे थे वो बेसिकली हमारे पास जो कस्टमर्स की तरफ से जो ऑर्डर्स थे, जो अभी जो हमें लॉस हुआ है, वो ऑर्डर्स थे वो लास्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह से हमें कंसिडरेबली हाई लॉस हुआ। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक ऑन द ट्रैक एंड वी हैव अगेन मेड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जो हमारे सितंबर के अकाउंट से यू कैन सी दैट कि वी हैव रिबाउंडेड टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 12 मिलियन। इन फ्यूचर जो हमारा जो मेन फोकस है वो ऑफसेट बिजनेस है। वी हैव ऑफलोडेड आवर ग्रेवियर डिवीजन। ग्रेवियर डिवीजन जो है उसके अंदर हमारे पास जो मार्जिन है दे वर बिकमिंग लोअर एंड लोअर, और उसका जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली द होल बिजनेस वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। सो वी डिसाइडेड टू ऑफलोड दिस ग्रेवियर डिवीजन एंड फोकस ऑन द ऑफसेट। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी लुकिंग आफ्टर कि हम नए जो कस्टमर्स हैं इन द ऑफसेट वी टेक देम ऑन बोर्ड, और ऑफसेट को हम और स्ट्रेंथन करके इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल बी मेकिंग मार्जिन्स ऑफ दैट। सर आपके मार्जिन काफ़ी लोअर साइड पे ही है, 6-7% के दरमियान। एक वन ऑफ आया है फोर्थ क्वार्टर में, लेकिन नॉर्मली आपके 6-7% होते हैं जिससे आप लॉस ही कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या सेल्स भी इंक्रीज करेंगे, मार्जिन भी इंक्रीज करेंगे, कि ये किस तरह की इंडस्ट्री है, इसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है कि मार्जिन इतना ज़्यादा कम है 6% 7%? देखिए ये जो मल्टीपल फैक्टर्स। ये जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है ये इंतहाई कॉम्पिटिटिव है, और कॉम्पिटिटिव होने की वजह से इसके जो मार्जिन है ऑलवेज थिन रहते हैं। वी हैव टू वर्क ऑन द स्केलेबिलिटी। जितना ज़्यादा हम सेल करेंगे, जितने हाई सेल करेंगे, वी कैन मेक द रेवेन्यू एंड वी कैन मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। जो हमारा फ्यूचर प्लान है इट इज़ टू फोकस ऑन द ऑफसेट डिवीजन, और कस्टमर बेस को हमें एक्सपैंड करने का जो मेन जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम कस्टमर बेस को एक्सपैंड करें, और जो हमारे जो इंटरनल जो हमारी वेस्टेजेस है उसको हम कंट्रोल करके हमारे जो मार्जिन है वी हैव टू इंक्रीज दैट। तो हमारे दो जो तरीके से काम कर रहे हैं इस वक्त। तो यस, द पैकेजिंग इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव, और इसके अंदर आपको पता है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, यानी कि जो छोटे लेवल पे जो काम करते हैं पैकेजिंग के अंदर वो भी यहाँ पे हैं। और प्लस सबसे बड़ा जो हमें मसला आता है वो आता है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, यानी कि जो प्लेयर्स जो कि टैक्स नेट में नहीं है, सो दे आर ऑफरिंग वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, सो वी हैव टू कम्पीट विद देम। तो इस वजह से हमारे मार्जिन भी थोड़े से थिन रहते हैं। तो सर आपका जो रॉ मटेरियल है वो ऑफसेट पेपर है, क्या है मतलब वो अगर देखा जाए तो कि और वो कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? आपकी सेंचुरी पेपर से प्रोक्योर करते हैं या क्या प्रोसीजर है इसका? जी, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बेसिकली बोर्ड होता है, और पेपर बोर्ड, एंड विच इज बीइंग 100% procured from not 100%, Close to 100%. close to 100% procured from सेंचुरी, और वहीं से हमारे पास आता है तकरीबन क्लोज टू 100%, बट नॉट 100%। ओके, तो सर क्या इम्पोर्टेड मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है कि इम्पोर्टेड का इसके अंदर कोई नहीं है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड भी चाइना से ये आ रहा होता है?
डंपिंग हो रही होती है? इसका जवाब मैं देना पसंद करूंगा। मेरा नाम साबिर इम्तियाज है। देखिए, इंपोर्टेड बोर्ड के साथ कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी कैन बी वन इशू, क्योंकि यहाँ जो इंपोर्टेड बोर्ड आ रहा है वो मोस्ट ऑफ द बोर्ड इज कमिंग थ्रू ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स को स्टॉक लॉट्स या वहां पे बनी हुई रखी हुई कोई लॉट्स मिलती हैं सस्ती, वो लेकर आ जाते हैं। तो और मेरा कस्टमर जो है ही वांट्स अ कंसिस्टेंट प्रोडक्ट। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमारा जो बोर्ड है वो टेलर मेड है, और इट्स ऑन अ कंसिस्टेंट क्वालिटी। अगर बोर्ड की क्वालिटी में ऊपर नीचे होगा तो ऑफ कोर्स प्रिंटिंग क्वालिटी पे असर आएगा, और मेरे कस्टमर्स उससे बहुत ज्यादा खुश होंगे नहीं। और ये जो भी इंपोर्ट का फिनोमेनन आज है, इट्स नॉट नेसेसरी कि कल भी होगा। पाकिस्तान हैज बिकम अ डंपिंग ग्राउंड फॉर दीज चीप प्रोडक्ट्स, लेकिन कब तक रहेगा नोबडी नोज। और जो मेरे अच्छे कस्टमर्स हैं, दे डू नॉट वांट टू गेट entangled in that situation कि जहां उनको कल का ना पता हो कि कल क्या होगा। तो दे आर वेरी cooperative and they are very happily taking the materials from us. तो सर ये टोटल मार्केट साइज कितनी होगी अगर टन्स में बात की जाए तो? तो बताएं। देखिए, टन्स में बात की जाए तो इट इज़ वेरी अनडिटर्मिनेबल राइट नाउ। वो इसलिए अनडिटर्मिनेबल है कि हमारे पास जो सप्लायर्स हैं वो हमारे पास बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड है, तो इसलिए मार्केट साइज को डिटरमिन करना नामुमकिन है। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि सेंचुरी और बुल्ले शाह, दे आर टू रेगुलर एंड लेजिटिमेट प्रोड्यूसर्स ऑफ द बोर्ड। अगर इन दोनों के बोर्ड्स की कैपेसिटीज देखी जाए तो दिस इज ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइज इन पाकिस्तान। और इसके अलावा छोटी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं पंजाब में और मुल्क के बाकी शहरों में, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है वो कहना मुश्किल है कि कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड। सिमिलरली जो बोर्ड इंपोर्ट हो रहा है उसमें क्वालिटीज के इश्यूज ऐसे हैं कि वी कैन नॉट से कि बोर्ड क्वालिटी ए आज जितना आया है कल भी वही आया हो, क्योंकि वो मिस डिक्लेरेशन और दूसरे तरीकों से वो नेम्स आगे पीछे करके क्वांटिटी को वेरीफाई करना मुश्किल बना देते हैं। सही है। तो सर आपकी बात से मुझे अंदाजा हो रहा है कि टोटल मार्केट साइज कोई 5 लाख की है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, 5 लाख टन्स की। आफ्ताब साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। एक्चुअली जो पैकेजिंग बोर्ड की जो मार्केट है जो कि डॉक्यूमेंटेड है और जो कि बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो कोई 3 लाख की मार्केट है। और उस 3 लाख में से ज़्यादातर बोर्ड पैकेजेस सेंचुरी बनाती है, कुछ पैकेजेस बनाता है और कुछ इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट जो होता है वो ब्लीच बोर्ड होता है जो कि 100% वर्जिन फाइबर से बना होता है, और जो रिसाइकल से बना होता है वो सेंचुरी बनाती है और बुल्ले शाह बनाती है, पैकेजेस की जो कंपनी है। तो टोटल साइज अगर छोटे लोगों को भी बना लिया जाए तो ये इन्होंने जो 5 लाख की फिगर कही है वो काफ़ी रीजनेबल है, थोड़ी सी ओवर एस्टिमेटेड है वैसे। तो मैं आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज तो 3 लाख है लेकिन अनऑर्गेनाइज टोटल साइज 5 लाख से कम है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, ठीक है सर। और बाकी सर ये गोइंग फॉरवर्ड सर आप लोग फिर क्या सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसलिए कि आप लोगों ने कहा कि फ्लेक्सिबल से सब आउट हो गए, और तो सर गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देख रहे हैं इसको फिर? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, मुझे मेरा सप्लायर 2 पैसे कम पर नहीं देगा। सिमिलरली मेरा बायर मुझे ज्यादा नहीं देगा अगर उसको अच्छा प्रोडक्ट कहीं और से मिल रहा है। मेरे पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो अपने हाउस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि हम अपने प्रोसेस की वेस्टेजेस और ऑपरेशनल लीकेजेस को कंट्रोल करें। और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम टू डू दैट। और ये पहला क्वार्टर जो था 26 का 26 का, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ दैट, एंड दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। तो मार्जिन हमारे पहले क्वार्टर में भी बढ़े हैं और नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर्स में मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। इम्कानात क्या, यकीनन है। सही सर, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में एक वन ऑफ आपके सेल की वजह से अदर इनकम का पोर्शन आ गया, वरना अगेन वो लॉस के करीब ही होता अगर टैक्सेस मिला के
देखा जाए तो फर्स्ट या समझे ब्रेक इवन के करीब होता। जी हाँ, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। पिछले साल के आफ्टर इफेक्ट्स तो अभी कुछ महसूस होंगे। ओके, और सर इससे ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में बता दें, इसलिए कि इंक वगैरह आपकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती होगी, लोकली आप अच्छी खासी चीज़ें प्रोक्योर कर रहे होते हैं, तो आपको इंक वगैरह बाहर से ही मंगवानी पड़ती है, इम्पोर्टेड होती है, तो उस पर टैक्स वगैरह क्या है, और इससे कुछ अफेक्ट आता है आपके मार्जिन पे कि बाकी प्लेयर्स अगर कम रेट में मंगवा रहे हैं या कुछ इस तरह से सिलसिला हो तो? देखिए, अगर कोई अंडर इन्वॉइसिंग कर रहा है तो आई कांट कमेंट ऑन दैट, लेकिन मेरा तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल से है कि मेरी जो 90% ऑफ द कॉस्ट है वो लोकली प्रोक्योर होती है मटेरियल्स की शक्ल में। इट्स ओनली अबाउट 10% जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स और कुछ सिलेक्टेड इंक्स में, तो 10% पे ड्यूटीज जो भी है वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। ओके ओके ओके, सही है सही है। सर इसके अलावा आप लोगों ने पहले मेंशन किया था कि आपको मैकडोनल्ड वगैरह से भी काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, फिर आपने कराची में भी कुछ कैपेसिटी इंक्रीज करने की आपने कही थी बात पहले, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 800 टन से 1200 टन पे लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में फिर क्या अपडेट है? देखिए, अभी जैसे इन्होंने उमैर साहब ने बताया है कि ऑफसेट की अभी हमारी एस्टिमेशन है कि 900 टन तो हम आराम से कर लेंगे। और इसमें एक फैक्टर ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं 350 ग्राम का बोर्ड यूज करता हूं तो विदाउट डूइंग एनीथिंग मैं शायद 1200 को भी क्रॉस कर जाऊं, लेकिन मेरे कस्टमर का जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो यूजुअली फ्लक्चुएट करती है 215 ग्राम से 350 ग्राम के दरमियान। तो इट्स नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ डूइंग द टनेज, बल्कि कितने प्रिंट्स निकालने हैं, दैट आल्सो काउंट्स। तो हमने अभी पिछले 2 महीनों में अपनी मशीनों की तरफ तवज्जो देनी शुरू की है। एक मशीन की मेंटेनेंस कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी मशीन की मेंटेनेंस इसमें जारी है, और एक एक करके हम अपनी मशीन्स को डाउन टाइम लेकर और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इनसे जो आउटपुट बढ़ेगी वो 900 पे ऐड ही करेंगी। सही है सर। तो सर गोइंग फॉरवर्ड हम सेल्स के नंबर अगर देखें आपके 4 बिलियन के करीब हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं इसकी सेल्स के नंबर को? मार्जिन अगर 7% है तो वो कितने इंक्रीज हो सकते हैं फर्दर? 2 से 3%। देखें, इसमें हमारे पास जो रेवेन्यू है, इसमें वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू नंबर्स आल्सो। इसमें 4 बिलियन 5 बिलियन, बट इट डिपेंड्स ऑन द मिक्स, कस्टमर मिक्स के। डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट प्राइस ऑफर करते हैं, और हर कस्टमर का अपना एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, हर कस्टमर का अपना एक क्रॉस मार्जिन होता है। सो व्हाट वी आर वर्किंग ऑन कि हम बॉटम लाइन को पॉजिटिव करें एट ऑल कॉस्ट दिस ईयर। So we are striving for that. So revenue जो भी हो, I'm working towards positive numbers at the bottom. सो इसके लिए तो डबल डिजिट ग्रॉस मार्जिन रिक्वायर्ड होंगे। देखें, डबल डिजिट तो मैं इस वक्त मार्जिन्स को रिवील नहीं कर सकता, व्हाट इज आवर ब्रेक इवन, एंड कितना मार्जिन कमाएंगे तो हमें ब्रेक इवन होगा, या हम कहाँ तक के पहुंचेंगे। बट वी आर वर्किंग ऑन टू इंक्रीज आवर मार्जिन्स इन फ्यूचर। मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकता कि हमारे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनका जो डाटा है वी डोंट हैव दैट, सो आई कैन नॉट गिव आउट माय डाटा आल्सो, सॉरी फॉर दैट। लेकिन वी आर वर्किंग टुवर्ड्स and working towards make our bottom line positive. सही है। और सर आपका बिगेस्ट जो आपका प्रोडक्ट सेल होता है वो किस सेक्टर के अंदर होता है, अगर ये कुछ आइडिया दे सकें, एक दो सेक्टर्स? 6-7 सेक्टर्स है। फूड है, स्पाइसेस है, ओरल हेल्थ केयर है, डिटर्जेंट है। फार्मास्यूटिकल है। अगर आप टॉप की बात करें तो हमारे पास जो फिलिप मॉरिस है, दैट इज आवर बिगेस्ट कस्टमर, प्लस जो सेकंड जो लार्जेस्ट है, इट्स अबाउट इट्स टपाल। तो हमारे पास 2-3 कस्टमर्स हमारे पास मेनली हैं जो कि जिनको हम हेल्दी क्वांटिटी सेल करें। सही है सही है, ठीक है चल, थैंक यू सर, मेरे इन पे यही है।
So since there is no more questions, we may close the session with thanks to all the तो ये members. बताइए, अच्छा, हेलो, कामरान साहब जी बोले। ये जी बताइए सर। आपका एनर्जी मिक्स कितना है सर इसके अंदर? और आप एनर्जी को कवर करने के लिए देखिए बहुत सी कंपनियों ने जो है ना वो सोलर के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन होता है। और आपकी सर कॉर्पोरेट ब्रीफिंग तकरीबन वही है जो पिछले साल थी, सेम वही चीजें जो आपने ना रिपीट की हैं सर। इतना अच्छा ग्रुप है आपका सर, अगर आपसे ये कंपनी नहीं चल रही तो सर इसको डिस्पोज ऑफ ही कर देना सर। कम से कम हम शेयर होल्डरों को कुछ तो फायदा हो जाएगा। Can you repeat the question, sir? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका एनर्जी मिक्स कितना है सर, इसमें आपकी पावर कंजप्शन कितनी हो रही है? और बहुत सी कंपनियों ने अपनी पावर कॉस्ट को कट करने के लिए सोलर ऑप्शन के ऊपर भी जा रहे हैं। इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि सोलर ऑप्शन इज डेफिनेटली एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन इसको हम करने जा रहे हैं। आई कांट गिव यू द टाइमलाइंस राइट नाउ, लेकिन व्हाट आई कैन टेल यू इज कि कंपेयर टू लास्ट फिस्कल ईयर्स, or we have already slashed down our electricity consumption by about 30%, and that is inclusive of Gravior. Gravior हमारे पास अगस्त तक चलती रही है। 30% reduction in electricity consumption is itself is a big achievement, or that alone is making a saving of about 1 crore rupees per month. और नेक्स्ट स्टेप हमारा सोलर का है, और सोलर में राइट नाउ वी आर डिबेटिंग कि हम किस एरिया से अपनी फैक्ट्री में शुरू करेंगे वो, क्योंकि देयर आर 2-3 ऑप्शंस एंड वी आर डिबेटिंग टू फाइंड आउट द मोस्ट ऑप्टिमम वन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 30% इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपकी डिक्रीज हुई है, तो इसका रीजन क्या है सर? एनर्जी कंजर्वेशन, जहां पे जरूरत नहीं है एयर कंडीशनर की क्यों चल रहा है, जहां पे लाइट की जरूरत नहीं है क्यों चल रही है वो। पीपल आर trained, educated, motivated to shut down the ACs when they are not in their rooms. Shut down lights when it's not needed. तो सर ये आप वैल्यू वाइज बता रहे हैं कि वॉल्यूम वाइज बता रहे हैं, कि मतलब यूनिट्स में ही सारा बता रहे हैं कि? मैंने दोनों चीजें बताई हैं। Approximately 30% of the units, or about 1 crore rupees per month. सर इसमें प्लीज ये ऐड कर दें कि आपकी एनर्जी का परसेंटेज कितना है सर, आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर कितना परसेंटेज आपका एनर्जी का है, ताकि हम थोड़ा आइडिया लगा सकें कि अगर आप कल को सोलर ऑप्शन पे भी जाते हैं तो कितनी सेविंग हो सकती है। जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें जो मेन जो हमारा इनपुट है वो तो बोर्ड है। अगर आप मशीन्स वगैरह की बात करें और इनकी कॉस्ट की बात करें तो हमारा मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है कॉस्ट का वो तकरीबन जो होता है वो 5 to 6% होता है, इससे ज्यादा नहीं मैक्सिमम। सर ये सेल्स जो होती है आपकी नेट सेल्स, इसके अंदर में क्या बोर्ड की प्राइस भी गिवन होती है, कि ये खाली जो आपकी एडिशनल जो आपने कॉस्ट बेयर की है और जो सेल्स जो वैल्यू एडिशन की है उसकी होती है सारे नंबर्स? टोटल होती है, टोटल। मतलब बोर्ड के नंबर भी शामिल है इसमें? जी हाँ, जी हाँ। ओके। तो सर जब बोर्ड के नंबर आपके पास हैं तो सर आप लोग कुछ नंबर्स नहीं शेयर कर सकते कि आपने इतने टन सेल किया, इस तरह से कुछ टोटल ड्यूरिंग द ईयर? देखिए मैं फिर आपसे बात करूंगा कि हमारे पास क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं किस्म की क्वांटिटी का डाटा हमारे पास नहीं होता, तो आई कैन नॉट बी ऑन अ डिसएडवांटेज साइड कि मैं कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ रिवील करूं जो कि हमें कॉम्पिटिटर की नहीं हमारे पास आ सकती। सो दैट्स व्हाई मैं रिवील नहीं कर सकता। ओके सर, फेयर इनफ। साहब और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर विद दैट वी कैन क्लोज द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच ऑल।
Thank you very Thank you much, so sir. much, sir. Yes. Recording stopped.